Our today's class is for 12th. As you know, our subject is geology. Our today's topic is metal copper or what is copper. We have already discussed two metals, aluminium and iron. The next one is copper. Copper is widely distributed and abundant element in combination with other metals. It is found in native state also. Its specific gravity is 8.5 and its melting point is 1100 degrees centigrade. When we try to melt it, we need 1100 degrees centigrade temperature to melt this metal copper. Copper is comparatively soft and extremely tough metal. It is ductile and malleable, means we can make thin pieces of wire, or it is also a malleable. We can make sheets or shapes of different shapes without cracking or breaking the sheets or this copper. So in other words, we can make various types of sheets. In pure form, copper is best conductor of electricity. We use it in day-to-day life. Copper as in the form of utensils, or also we use in water tanks. We make the water tanks, and like copper is also used in geysers, water heaters. Also, this copper is also used in the electric transformers, or we can say stabilizers, which are we using in our homes. It is non-ferrous metal, so it does not contain ferrous or iron. Principal copper minerals are those minerals which contain the copper or sulfides, chalcopyrite, chalcocite, boronite, oxide, copperite, tellurite. Carbonates are malachite and azurite. So these are different copper minerals. If we try to understand mineral chalcopyrite, the composition is copper iron sulfide, or we can say sulfide of copper and iron, and its physical properties are, when we see the crystal system of this chalcopyrite, it is tetragonal, form is wedge shaped just like the wedges. Its color is brass yellow and with greenish black streak. That means when we put it into a powder form, this chalcopyrite ore, it provides us a greenish black. Shining is just like a metal. Luster, hardness 3.5 to 4, and its specific gravity is 4.3. So when we try to understand in a simple language, ये जो कॉपर मेटल है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है और एबंडेंट मेटल है. इन कॉम्बिनेशन जब देखेंगे बाकी मेटल्स के साथ, ये नेटिव स्टेट में ज़्यादातर हमें मिलता है, ये दस्तयाब है. इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 8.9, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का जो नुक्ता है इसका, उसके लिए हमें 1100 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है. जब हम 1100 डिग्री दर्जे हरारत इसको देते हैं तो ये पिघलने लगता है. मीन्स कि 1100 डिग्री टेम्परेचर इज नीडेड फॉर मेल्टिंग कॉपर. कॉपर जो है ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट और एक्सट्रीमली जब ये देखेंगे तो ये टफ मेटल है. इसकी जब डक्टाइल, ये ऐसा मेटल है, ये डक्टाइल और मेलेबल. इसका मतलब है हम इसको थिन वायर्स में, बहुत ही बारीक जो वायर होती है उसमें हम इसको ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. या मेलेबिलिटी की बात हम जब करेंगे
मेलिएबल ऐसा है कि ना ये क्रैक हो, जब हम इसको छोटे छोटे या शीट्स की शक्ल में इख्तियार इसको चेंज करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ना ये ब्रेक हो जाएगा ना क्रैक हो गया, इतना मेलिएबल है, इतना नरम और मुलायम होता है कि हम इसको आसानी से हल्के आइटम्स बना सकते हैं। जब हम बात करेंगे प्योर फॉर्म कॉपर की, तो ये हमें ज़्यादातर यूज़ हम इसका इलेक्ट्रिक, जैसे हमने स्टेबलाइजर्स हम बनाते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, या जो भी हमें इलेक्ट्रिक बेस्ड इक्विपमेंट्स घरों में इस्तेमाल हो जाते हैं, उनमें कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे हम वाटर हीटर्स की बात करेंगे, या वाटर गीजर्स, जो गीजर्स हम घर में, या जिस तरह से हमारे ये रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन में, इन सभी चीज़ों में इनकी जो कॉपर की वायरिंग या बाकी चीज़ इस्तेमाल होते हैं। ये नॉन फेरस मेटल होता है, इसमें आयरन नहीं होता है। और प्रिंसिपल और जो कॉपर के हैं सल्फाइड्स, चैल्कोपायरेट है, चैल्कोसाइट है, बोरनाइट है। इसी तरह से ऑक्साइड्स की जब हम बात करेंगे, कौन कौन से ऑक्साइड टाइप्स के ओर्स हैं इसमें, कॉपराइट, टिटेनोराइट वगैरह। इसी तरह जब कार्बोनेट ओर्स की या ऐसे मिनरल्स कॉपर के जिनमें कार्बोनेट, जिनको कार्बोनेट्स कहते हैं हम, वहाँ मालोचाइट एंड एजोराइट ऐसे है। हम आज अगर हम कोशिश करेंगे चैल्कोपायरेट को समझने के लिए, चैल्कोपायरेट जो आप जो पहले ही जानते हैं, यहाँ जो हमारे इंडिया में जो राजस्थान में खेतरी कॉपर माइन है, वहाँ जो ओर मिलता है वो चैल्कोपायरेट ओर है। और वो चैल्कोपायरेट और उसमें कॉपर आयरन सल्फाइड होता है, या सल्फाइड ऑफ कॉपर और आयरन होता है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर। कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे, उसमें क्रिस्टल सिस्टम टेट्रागोनल है, और जो फॉर्म है वाई शेप है, कलर ब्रॉस येलो होता है इसका। जब इसको स्ट्रीक फॉर्म में लाएंगे तो ग्रीनिश ब्लैक यानी पाउडर फॉर्म है। इसी तरह से लस्टर जो है मेटालिक है, हार्डनेस 3.5 से लेके 4 तक है, स्पेसिफिक है 4.3। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है इस चैल्कोपायराइट से। आज की क्लास में हम इतना इंट्रोडक्शन कॉपर के बारे में और चैल्कोपायराइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे 2-3 और जो और है सल्फाइड ओर्स, उनको जानने की कोशिश करेंगे। चैल्कोसाइट है, बोरनाइट है, या और एक सल्फर कॉपर सल्फाइड और है जिसको हम कोविलाइट कहते हैं, उनको हम जानने की कोशिश नेक्स्ट में इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड these three other three sulfide ores of copper in the next class.